Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today, we are going to cover topic number 3.5 of Unit 3 and topic name is While Loop. After watching this video, you will be able to state the need of while loop, list the types of loops, and state the syntax of while loop with its working. The course outcome that will get satisfied is CO3, that is, you will be able to develop C program using control structure. PO1, program outcome 1, that will get satisfied. There will be improvement in your basic as well as computer engineering and electronic and telecommunication engineering knowledge. PO4 will get satisfied, means you will be able to perform or execute programs in C by using Turbo C++ software as an engineering tool, and you will be able to debug the program and find the bugs. Then PO6, project management. You will be able to work on small projects in a team or by individually. So by doing this, your oral communication, written communication will get improved, as well as your presentation skills and interpersonal skills will get improved. And PO7, lifelong learning, that is, whatever the knowledge you are taking here, that knowledge will be with you for lifelong. So PO7 is satisfied. The prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of a general structure of C program, all operators and keywords of C language, and all the decision making statements like if else, nested if else, and else if ladder. So you should have prior knowledge of all these topics. Then what is the need of loop? हमें loop की ज़रूरत कब पड़ती है? So in any programming languages including C, loops are used to execute a set of statement repeatedly until a particular condition is satisfied. हमें एक पॉइंट पे हमारे पास ऐसा टाइम आता है कि हमको कुछ स्टेटमेंट्स बार बार वही स्टेटमेंट्स हमको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, रिपीटेडली उसी स्टेटमेंट को हमको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब हमको लूप्स की जरूरत पड़ती है. सो सपोज कोई कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, कोई कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, सो अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट कंडीशन मुझे उसके नीचे जो कुछ भी स्टेटमेंट्स है वो बार बार, सपोज 5 टाइम्स 10 टाइम्स मुझे बार बार उनको एग्जीक्यूट करना है, तब मुझे लूप की जरूरत पड़ती है. सो हम किस तरह से लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी भी लूप को, कि हम लूप में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमको ये एक कंडीशन होती है हमारे पास, उस कंडीशन को हमको पहले चेक करना पड़ता है. अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लूप के अंदर एंटर करते हैं और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से हम लूप के स्टार्टिंग में जाते हैं, फिर से उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं. अगर ये ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं और बार बार हम इस तरीके से उस लूप को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है आफ्टर सम टाइम कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है. तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम फॉल्स कंडीशन होने के बाद डायरेक्टली आउट ऑफ द लूप निकलते हैं, मीन्स हम डायरेक्टली लूप के बाहर निकलते हैं. मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे लूप में एंट्री की, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट किए, फिर से कंडीशन के पास गए, फिर से टेस्ट किया कंडीशन. सो जितने बार हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है उतने बार हम ये लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर प्रिंट कर रहे हैं या फिर प्रोसेस कर रहे हैं. ओके, सो कंडीशन ट्रू तो हम बार बार उस स्टेटमेंट्स को रिपीट करेंगे. कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम लूप के बाहर निकलेंगे. सो इस तरह से किसी भी लूप का वर्किंग होता है. सो as per above diagram, if the condition is true then the loop is executed,
and if it is false then the condition breaks out of the loop. कंडीशन ट्रू होती है तो लूप एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप के बाहर निकलते हैं. After the loop is successfully executed, the execution again start from the loop entry and again checks for the test condition and this keeps on repeating. जैसे कि अभी हमने बताया है कि कंडीशन सक्सेसफुली हमारा ट्रू हो गई अगर, सो लूप में एंटर करते हैं. कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप में एंट्री होने के बाद हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं एंड फिर से बार बार हम उस लूप के एंट्री पे जाते हैं और बार बार उस कंडीशन को टेस्ट करके हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं. द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इज केप्ट इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस नोन एज द लूप बॉडी. जो भी हमको स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने हैं वो हम ये लूप की बॉडी है, यहाँ पे कंडीशन है, ये लूप की बॉडी है, तो जो भी हमको स्टेटमेंट्स प्रिंट करने हैं या एग्जीक्यूट करने हैं हम लूप के बॉडी के अंदर उनको लिखते हैं और उनको कर्ली ब्रेसेस से एम्बेड करते हैं लाइक दिस. आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी कंडीशन इज वेरीफाइड एंड इफ इट इज फाउंड टू बी ट्रू द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड अगेन. सो लूप बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से हम लूप में एंट्री करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं और फिर से कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करते जाते हैं. When the condition check return false, the loop body is not executed and execution breaks out of the loop. जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप के डायरेक्टली बाहर निकलते हैं. तो इस तरह से हमारे लूप का वर्किंग होता है. There are 3 types of loops in C language. So पहला लूप है while loop, दूसरा है do while loop एंड तीसरा है for loop. So आज हम while loop का सिंटैक्स देखेंगे और उसके लिए एक प्रोग्राम देखेंगे. So while loop का सिंटैक्स इस तरह से होता है. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जो भी वेरिएबल्स हम यूज करने वाले हैं उनको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है. देन व्हाइल कीवर्ड, ये व्हाइल लूप है इसलिए व्हाइल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. तो ये हमारे सी प्रोग्रामिंग के जो भी 32 कीवर्ड्स है इनमें से एक कीवर्ड है व्हाइल. सो व्हाइल कीवर्ड का यूज करना है. उसके बाद यहाँ पे हमारा कंडीशन रहेगा जो भी हम एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं या टेस्ट करवाने वाले हैं. तो व्हाइल के बाद हम लिखेंगे कंडीशन. देन ये कंडीशन ट्रू होने के बाद हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी हमको एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं और उसके बाद ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर इनिशियलाइज किया था उसको एक तो इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे. उस वेरिएबल की वैल्यू एक तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी. सो सिंटैक्स इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, व्हाइल, कंडीशन, देन व्हाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट्स एंड वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. तो एक छोटा सा एग्जांपल. तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हमने एक इंटीजर नाम का एक्स वेरिएबल लिया है और उसको 0 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है. तो ये हो गया मेरा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. व्हाइल कंडीशन, व्हाइल कीवर्ड लिया है मैंने और यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये मेरी कंडीशन हो गई. तो पहली कंडीशन है x इज लेस देन 10, दूसरी कंडीशन है x इक्वल टू 10. तो ये मेरी कंडीशन हो गई. देन कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये चेक करने के लिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे. ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम लूप के अंदर आएंगे और कंडीशन अगर ट्रू होती है x की वैल्यू जो होती है सपोज x की वैल्यू 0 है तो 0 इज लेस देन 10, 0 इज लेस देन 10, ये पहली कंडीशन है लेस देन की और दूसरी कंडीशन है इक्वल टू की. सो 0 लेस देन 10 मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो रही है. कंडीशन ट्रू है तो हम व्हाइल के अंदर जाएंगे, व्हाइल लूप के बॉडी में अंदर जाएंगे. देन printf pic ये हम प्रिंट करेंगे. ये हो गई मेरी स्टेटमेंट. printf ये हो गई मेरी स्टेटमेंट, इसको एग्जीक्यूट किया मैंने. देन आफ्टर स्टेटमेंट्स मुझे वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है. तो x वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है. तो x प्लस प्लस इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 1. तो x की वैल्यू पहले थी 0, x प्लस 1 करूंगी तो 0 प्लस 1, तो x की वैल्यू अब हो जाएगी 1. ओके, देन x की वैल्यू 1 हो गई. फिर से मैं जाऊंगी व्हाइल लूप में यहाँ पे. देन x की वैल्यू अब हो गई 1. सो 1 इज लेस देन 10, मेरी कंडीशन चेक करूंगी. 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है.
कंडीशन ट्रू है, फिर से मैं लूप के अंदर जाऊंगी, फिर से PIC प्रिंट होगा, देन x की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब x की वैल्यू थी 1, तो फिर 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद 1 + 1 = 2, तो x की वैल्यू हो गई 2, फिर से मैं यहाँ पे गई। तो ऐसा करते करते मैं जाऊंगी 9 तक। x की वैल्यू जब 9 हो जाएगी, x की वैल्यू जब 9 हो जाएगी और फिर मैं एक बार उसको इंक्रीमेंट करूंगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगी तो 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई लेस देन की, दूसरी कंडीशन है हमारे पास इक्वल टू की, सो 10 = 10, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। 10 = 10 ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम PIC प्रिंट करेंगे, फिर से x की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे। अब x की वैल्यू हो जाएगी 11, सो वैल्यू हो गई 11, 11 लेस देन 10, कंडीशन हो गई फॉल्स। 11 = 10, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप के यहाँ पे बाहर निकलेंगे। तो ऐसा इंक्रीमेंट करते करते हमारी जो PIC है, ये जो वर्ड है हमने कितने 10 टाइम्स प्रिंट किया, और जब x की वैल्यू 11 हो गई तो हम लूप के बाहर निकले। इसका मतलब ये PIC वर्ड है हमने 10 टाइम्स प्रिंट किया। तो इस तरह से व्हाइल लूप का सिंटैक्स और वर्किंग होता है। सो 3 स्टेजेस होते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हमने देख लिया है। ये छोटा सा प्रोग्राम है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जो है हम प्रिंट करने वाले हैं। तो ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मेन फंक्शन जिसने वॉइड डेटा टाइप लिखा है हमने, x की वैल्यू हमने अब 1 से इनिशियलाइज की है। ये डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी वैल्यू से वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया। व्हाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 10, x की वैल्यू है 1, जब तक x की वैल्यू 10 के बराबर है तब तक हम x की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब इनिशियली x की वैल्यू 1 है, सो 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है मेरी, कंडीशन ट्रू है तो मैं x की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। तो x ये इंटीजर है इसलिए %d लिखा है। /t मीन्स क्या है, टैब। तो जब भी मैं आउटपुट प्रिंट करूंगी तो थोड़ी स्पेस, एक टैब की जो है स्पेस है वो यहाँ पे छोड़ के दूसरा नंबर प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसलिए हमने /t लिया है यहाँ पे। तो पहला 1 प्रिंट हो गया, देन x की वैल्यू हमने 1 से बढ़ा दी, ये हो गया मेरा वेरिएबल इंक्रीमेंट। 1 से बढ़ गई तो x की वैल्यू हो गई 2, सो 2 इज लेस देन 10, फिर से कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट हो गई x की वैल्यू 2, तो 2 प्रिंट हो गया। ऐसा करते करते हम जाएंगे 10 तक। ओके, तो अब x की वैल्यू 10 है, हमने 10 प्रिंट कर दिया। अब x प्लस प्लस करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 11। ओके, तो 11 हो जाएगी x की वैल्यू, तो अब यहाँ जाएंगे 11 इज लेस देन 10, 11 छोटा नहीं है तो कंडीशन हमारी फॉल्स है। 11 = 10, तो 11 10 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम इस व्हाइल लूप के बाहर निकलते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे वॉइड मेन फंक्शन जो है हमारा, हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स जो है ये हमारे नंबर से वो हमने प्रिंट किए हैं। यहाँ पे स्पेस दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ /t, एक टैब की जो स्पेस है वो यहाँ पे हमने /t से प्रिंट की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाइल लूप। So let us summarize today's lecture. Today we have seen what is the need of loop, what are the types of loop, syntax of while loop and working of while loop with one example. So dear students, you might have understood today's lecture. I hope that, and if you have any queries then feel free to reach out on this email ID and keep learning, enjoy learning. Thank you for watching the video.